Hello, my dear aspirants. Welcome to Institute of Civil Services. I am Shardul Gupta, and today I will be taking the topic of India and Afghanistan relations. So, without any further delay, let's begin. So, first we will begin with the map of Afghanistan. As you can see, it's a landlocked country. इसका कोई भी access to sea नहीं है, इसलिए उसको landlocked कहा जाता है. And if we see the bordering countries clockwise देख लेते हैं. So it will be first Iran. Okay, as you can see here, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan. Okay, then China and India. Okay, this is India and this is China, and of course Pakistan. So these are the nations which are bordering Afghanistan. Okay, remember it's Turkmenistan, Uzbekistan and Tajikistan. Only three Central Asian countries share border. ओके, यहीं पर आप लोग फंस जाएंगे. प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आएगा कि कजाकिस्तान है कि किर्गिस्तान है, दीज टू आर नॉट. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द हिस्ट्री. सो हिस्ट्री में हम डिवाइड कर सकते हैं कि एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न में डिवाइड कर सकते हैं. हम लोग एंशियंट में देख लेते हैं. एंशियंट में वी हैव दी सिविलाइजेशनल लिंक्स लाइक गंधारा, है ना, आपने पढ़ा होगा महाजनपदास के समय. देयर वर three schools of Buddhism prominently. That was, one was Gandhara, second was Mathura, and third was Amravati. There was also Sarnath school, but it was not so important. So we can see Gandhara was an area in Afghanistan, and we can see that Indo-Bactrian and Greek invaders, they came through the Afghanistan, the Wakhan corridor, this narrow passage. So they came from here and entered India. Okay, so this was the thing. And during Mauryan rule, if you see the map of Mauryas, so Mauryans थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका, एंड स्पेशली ड्यूरिंग द रूल ऑफ अशोका, उनका जो रूल था वो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था. एंड इफ़ वी गो टू मेडिवल साइड में वी सी लोदीज ऑफ दिल्ली सल्तनत that were of Afghan origin, or Sher Shah Suri, of course, which was battling with Humayun, and as soldiers भी recruit करे गए थे उनको. and there was अकबर के relations में भी he actually made matrimonial alliances with the Afghan people so that they can win the trust of them. Okay, and if we see the modern times, we have seen, you must have read in history that Anglo-Afghan wars, there were three Afghan wars fought, and this is generally referred to as the Great Game or the Tournament of Shadows. The Great Game or the Tournament of Shadows. Why? Because it was during that time that the Britishers versus Russia, or not Russia, erstwhile USSR. So this was the pattern there, and it was the imperial rivalry, and Britishers was trying to stop the southward expansion of Russia. And during that time it was the regime of Tsar, as you must have heard. So I have written this data fact point here. So you can see the first Anglo-Afghan war was fought between 1838 to 1842, then second 1872-79, and third was during the 1919, before the beginning of the non-cooperation movement. Okay, so with the Treaty of Gandamak, which happened after the second Anglo-Afghan war, the British India made it as a buffer, because Afghanistan is basically referred to as graveyard of various empires. Okay, because कोई भी एम्पायर अभी तक उसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया. दैट्स वाई ब्रिटिशर्स ने भी कहा कि छोड़ो, उसको बफर बना देते हैं. बफर इज़ एनीथिंग विच प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्सेस. लाइक हमारे और बेड के बीच में तकिया जो होगा वो बफर होगा. सो टेकिंग इट फर्दर, 1893 में एग्रीमेंट हो गया था about the Durand Line. So Durand Line is the border line demarcating Afghanistan
एंड पाकिस्तान बॉर्डर्स। ओके, सो ये बफर बना दिया गया था उस समय, और ब्रिटिश रेसिडेंट को भेज दिया गया था, सॉरी, ब्रिटिश रेसिडेंट को भेज दिया गया था। एंड फॉरेन अफेयर्स, जो भी फॉरेन अफेयर्स के डिसीजन लिए जाते वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन से लिए जाते। ओके, एंड इन 1919 अफगानिस्तान डिक्लेयर्ड इटसेल्फ इंडिपेंडेंट। अभी इंडिपेंडेंट नहीं था बिकॉज ब्रिटिश रेसिडेंट रह रहे थे, तो इट वॉज अ सिमिलर टू सब्सिडरी अलायंस। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि ऑकलैंड्स फॉरवर्ड पॉलिसी was with respect to Afghanistan. Okay, so after independence 1950 में हमने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप किया, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, पीस एंड कोऑपरेशन, एंड ड्यूरेंट लाइन बिकेम द बेसिस ऑफ बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, एज आई टोल्ड यू बिफोर। और फिर नाउ इट वांट्स टू टेक बैक द टेरिटरी वेयर पश्तून्स आर इन मेजोरिटी। ओके, अभी डिस्प्यूट चल रहा है पाकिस्तान के साथ कि जहाँ भी पश्तून्स होंगे वो आई विल टेक इट बैक। मतलब अफगानिस्तान वांट्स टू टेक इट बैक बिकॉज ये मेजोरिटी, ये ड्यूरेंट लाइन ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, और इट इज़ एन आर्टिफिशियल लाइन, किसी एक्सटर्नल प्लेयर ने बनाई थी। सो इट वांट्स टू क्रिएट कि हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कोऑपरेशन से ही एक लाइन बने, और स्पेशली जो मेजोरिटी ट्राइब्स, मेजोरिटी एथनिक जो पश्तून के रीजन है, पश्तून या पश्तून जो हैं, उनको हमारे एरियाज़ में सम्मिलित कर लिया जाए। ओके, so this is Durand line was created by foreigner, so it wants Khyber Pakhtunkhwa and FATA, that is federally administered tribal area। ये पहले पाकिस्तान का ही पार्ट था, एंड इट वाज लेटर मर्ज्ड विद खैबर पख्तूनख्वा रीजन ऑफ पाकिस्तान। और खैबर पख्तूनख्वा रीजन में ही अफगानिस्तान के पश्तून ट्राइब जो है, पश्तून जो एथनिसिटी है, दैट इज़ इन मेजोरिटी। सो इट देयर डिस्प्यूट है, नेबर है तो डिस्प्यूट हो गई। ओके, सो इन 1973 देयर वाज अ कूप इन अफगानिस्तान। 1973 में कूप हो गया था। कूप मतलब मिलिट्री रूल शुरू हो गया था, एंड देन स्ट्रगल फॉर पावर बिगिंस। ओके, इन 1979 सोशलिस्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन अफगानिस्तान। सो सोशलिस्ट यहाँ पर आ गया, तो एज वी कैन सी दिस इज़ अ पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर। ओके, कोल्ड वॉर गोइंग बिटवीन USA and USSR। So USSR invades Afghanistan in response to call for support by the government। ऐसा उसने क्लेम किया था कि USSR ने क्लेम किया था कि अफगानिस्तान के गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज़ कम एंड हेल्प अस बिकॉज ऑफ द कूप इन अफगानिस्तान, द मिलिट्री रूल। सो इट इन्वेडेड, एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1979 to 1989 US ने भी वहाँ उसने पाकिस्तान में इन्वेड कर दिया। सो इट वॉज लाइक अ प्रॉक्सी वॉर। ओके, अफगानिस्तान में USSR, सो उसको कंट्रोल करने के लिए USA इन पाकिस्तान। तो दैट वाज टू अगेन टू प्रिवेंट मोर नेशंस फॉलिंग इनटू द सोशलिस्ट ब्लॉक। तो USA नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान के पाकिस्तान के जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं, like especially the Central Asian regions and India, of course, they fall into the socialist regime। So it also invaded, and इसी चक्कर में पूरा it supported the ISI of Pakistan, and we see the beginning of the Mujahiddeens। Mujahiddeens means that those forces for fighting for the independent Afghanistan। Okay, सो पाकिस्तान ने ही सीखा था US से द आर्ट ऑफ प्रॉक्सी वॉर्स, जो अभी भी इंडिया में उसका मैनिफेस्टेशन दिख रहा है, दैट इज़ फ्यूलिंग टेररिज्म इन इंडिया। इन 1990s इट वाज अ पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी। पूरा सिविल वॉर टिल 1996 तक हुआ था। 1996 तक पूरा सिविल वॉर हुआ था। इसमें इंडिया सपोर्टेड द नॉर्दर्न अलायंस विच अपोज द तालिबान। ओके, तो इसमें बहुत ही मुजाहिदीन भी फाइट कर रहे थे, तालिबानी भी थे, एंड डिफरेंट एथनिक लॉर्ड्स वहाँ पर बहुत, जैसे हमारे यहाँ गुप्ता पीरियड में फ्यूड्स बहुत सारे बढ़ गए थे, एंड मल्टीपल फ्यूड्स मीन्स मल्टीपल राइवलरीज। सो सिमिलर थिंग हैपेंड इन अफगानिस्तान। ओके, सो इंडिया को सपोर्ट करना था नॉर्दर्न अलायंस का, और बाकी जो एंड दिस वाज हेटेड बाय तालिबान। 1996 में तालिबान इमर्ज विक्टोरियस। तालिबान जीत जाता है, सबको हरा देता है, इन सबको हरा देता है, और तालिबान गवर्नमेंट बना लेता है। सो वी सी तालिबानी गवर्नमेंट देयर। So it was the Taliban means the students fighting for the independence of Afghanistan, okay, or security of Afghanistan।
तो ये तालिब वर्ड से आता है. तालिब वर बेसिकली दी स्टूडेंट्स विच टुक रिफ्यूजी इन पाकिस्तान ड्यू टू प्रॉक्सी वॉर्स एंड इंस्टेबिलिटी की वजह से जो भाग के पाकिस्तान में दे वर टेकिंग रिफ्यूजी. सो दैट बिकेम दी तालिबान and it was supported by the ISI of the intelligence agency of the Pakistan. Okay, so as you know कि तालिबान जब भी आता है तो it imposes strict Sharia law, and according to its interpretation no women education is allowed, no music, cricket भी नहीं, and also during that time it destroyed the Bamiyan Buddha. Okay, Bamiyan Buddha was among the most important statues that time in Afghanistan, but it was destroyed by the Taliban. Okay, 1999 में IC-814 was hijacked. IC-814 was the Indian airplane hijacked by the Taliban, and उसके रिटर्न में ऑफ कोर्स हाईजैक किया है तो कुछ डिमांड्स होंगे. तो डिमांड क्या थी उनकी? डिमांड वॉज टू रिलीज द प्रिजनर्स, एंड ऑफ कोर्स वहाँ पर एक आदमी एक हॉस्टेज ले लिया था और एक हॉस्टेज मर भी जाता है. सो इंडिया सकम्स, ऑफ कोर्स इट वांट्स टू केयर फॉर इट्स पीपल, तो उसने रिलीज़ कर दिया. तो मसूद अजहर जो हम लोग देखते हैं आजकल, सो इट वाज द पॉलिसी ऑफ द IC-814 हाईजैकिंग विच हैपेंड इन 1999. तो उस समय कारगिल वॉर इधर चल रहा था एंड हाईजैक्ड इधर, तो बहुत मल्टीपल इशूज़ वर बीइंग फेस्ड बाय इंडिया. ओके, तो ये थोड़ा सा मसूद अजहर अलवी इज़ अ रेडिकल इस्लामिस्ट एंड टेररिस्ट बीइंग द फाउंडर एंड लीडर ऑफ जैश-ए-मोहम्मद. ओके, which is active in the Pakistan region, and his action are not limited to South Asian region. और ये मतलब ब्रिटेन और ये मतलब हर जगह अटैक कर रहा है. Of course we see that. So it has been listed as international terrorist by the UNSC. Okay, 2001 में of course we know that 9/11 attacks हुए थे. World Trade Center was destroyed, which is in Pentagon of US, and it was destroyed by Al-Qaeda, which was based in Afghanistan only, and demanded the withdrawal of American troops from Arab nations soil. Okay, उन्होंने कहा कि अब आपका काम ख़त्म हो गया है, प्लीज़ लीव आवर नेशन. सो ये अटैक कर दिया. उसके बाद से USA को गुस्सा आ गया एंड इट स्टार्टेड द ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म. तो हम लोग ज़्यादातर ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म अलकायदा के संदर्भ में ही देखते हैं, बट इट वाज आल्सो विद रिस्पेक्ट टू इराक. उस समय सद्दाम हुसैन भी बकैती कर रहे थे इराक में. सो अफ़गानिस्तान में टेररिज्म एंड इराक में टेररिज्म. सो एंड USA आस्क पाकिस्तान टू सपोर्ट, अदरवाइज वी विल बॉम्ब यू टू द स्टोन एज. ऐसा उनके एक एम्बेसडर कहे थे. तो उन्होंने कहा था कि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो वी विल बॉम्ब यू टू द स्टोन एज. तो पाकिस्तान कंप्लाई कर देता है, और हम लोगों ने इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में देखा भी था उसी समय. ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली, आफ्टर 2001 ऑनवर्ड्स, the CDP, Composite Dialogue Process, begins with India, which was referring to issues like the Kashmir issue, the Indus Water Treaty, demilitarization. Okay, these were the issues which were taken by the India and Pakistan at that time, and also Pakistan started complying with the थोड़ा सा डर गया and it started complying with the US. December 2001 में क्या हुआ? UN mandated ISAF, मतलब यूएन की एक फोर्स थी. एक्चुअली ये नाटो की ही फोर्स थी, एंड यूएन में ऑफ कोर्स परमानेंट मेंबर्स में USA था. तो इट वाज द UN mandated ISAF, दैट इज़ इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स. ओके, सो इट वाज डिप्लॉयड इन अफगानिस्तान, ओके, टू टैकल द टेररिज्म. 2004 में स्टेट बिल्डिंग स्टार्ट हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया था, एंड 2011 में USA अनाउंसेस विड्रॉइंग ऑफ अफगानिस्तान, and it was done. This started from 2014. ओके, यहाँ पर अनाउंस किया गया और यहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया. ख़त्म, अभी पूरा विड्रॉ नहीं किया है. विड्रॉ तो अभी करेंगे 2-3 साल पहले तक. सो अभी 2014 को एग्जीक्यूट करना शुरू किया उन्होंने. एंड वी सी मिस्टर ओबामा, द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अपोज्ड वॉर इन अफगानिस्तान एंड इराक. बट फॉरेन पॉलिसी का मैटर है, एक दिन में चेंज नहीं होता है, तो इट हैज़ टू टेक कंसिडरेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स. सो एब्रप्टली भी चेंज नहीं कर सकते. सो इट ऑल्सो फॉलोड कि हाँ ठीक है, धीरे धीरे करते हैं, वी विल एकदम से विड्रॉ नहीं कर सकते. नाउ वेदर रिड्यूस्ड, जो भी फोर्सेस रिमेन थे वो सपोर्टिंग थोड़ा सा निकाल लिया गया था वहाँ से, और जो भी पहले ऑफेंसिव रोल था उनका कि अटैक करेंगे, ना इट वाज टू डिफेंड दी अफगानिस्तान टेरिटरी, है ना, ये उनका जार्गन था USA वालों का. 2018 आया था, वहाँ पर अफगानिस्तान गवर्नमेंट प्रिपेयर्स टू टॉक विद दी
Taliban. Sorry, this is Taliban. And it says no, we will not talk, है ना, क्योंकि अब वो स्टार्ट करने लगा था. देवर आफ्टर द ग्लोबल वॉर ऑफ टेररिज्म एंड द विड्रॉल ऑफ द ISAF, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्सेस, इट स्टार्टेड रीग्रुपिंग. धीरे धीरे करके स्टार्ट हो गया था उसका रीग्रुपिंग. सो USA ने कहा कि चलो बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं, देखें क्या होगा. बिकॉज एज यू नो USA का इंटरेस्ट है इंडियन ओशन रीजन में. ओके, इंडियन इंडो पैसिफिक रीजन. So of course it wants to be close to Indo-Pacific region as much as possible. तो ठीक है, फिर 2019 आया था, अमेरिकन वुड बी एंगेजिंग विद अफगानिस्तान. उन्होंने मना कर देता है, लेकिन अफगानिस्तान से इट स्टार्टेड टॉकिंग. 2020 कुछ बात हो जाती है तो दे डू द अग्रीमेंट, द पीस अग्रीमेंट बिटवीन द तालिबान एंड US, एज यू मस्ट हैव हर्ड ड्यूरिंग दोज टाइम्स ऑफ करंट अफेयर्स. तो अग्रीमेंट में क्या हुआ था कि टाइमलाइन ऑफ ISAF फोर्सेस एक निर्धारित कर दी जाएगी और कंप्लीट विड्रॉल हो जाएगा. मतलब कुछ भी बचेगा नहीं, नीदर फॉर डिफेंसिव नॉर फॉर ऑफेंसिव. बस पूरा हटा दी जाएगा, पूरा खाली कर दिया जाएगा, सबको ले लिया जाएगा. प्रिजनर्स एक्सचेंज होंगे और इंटर अफगान डायलॉग शुरू हो जाएगा. इन रिटर्न क्या चाहिए USA को तालिबान से कि इट शुड गारंटी द काउंटर टेररिज्म. ओके, सो इट शुड सर्टिफाई कि उसने खुद से कहा कि काउंटर टेररिज्म हम शुरू कर देंगे. तो ऐसा तो बस झूठी बोल रहा था वो, इट वाज नथिंग लाइक दैट. तो आइडियली क्या होना चाहिए था कि सीज़ फायर होना चाहिए था. इस जो अग्रीमेंट में आइडियली जो होना चाहिए था, तो ये होना चाहिए था कि देयर शुड बी सीज़ फायर. उसके पहले तो सीज़ फायर कर दीजिए, देन इट शुड बी इंट्रा अफगान डायलॉग, देन कॉम्प्रिहेंसिव पीस अग्रीमेंट. बट एंड दिस शुड बी डन बिटवीन द थ्री मेजर पावर्स, दैट इज़ USA, तालिबान एंड अफगानिस्तान गवर्नमेंट. तो दिस वॉज द थिंग. Okay. So by 9/11 2020 all withdrew. 9/11 वही डेट थी. That was the time of the World Trade Center, when the World Trade Center was attacked. So तब तक सारे लोग वापस हो गए थे and intra Afghan talks started in Qatar. Okay. Biden administration, Biden replaced the Donald Trump and उन्होंने जब ये इनकी इस समय में जब कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, मिसमैनेज्ड हो गया, थोड़ा अटैक्स हो गए, तो उसने उस समय तालिबान टुक दिस एक्सक्यूज़ एंड कैप्चर्ड काबुल. ओके, जब काबुल कैप्चर कर दिया, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान. जब कैपिटल कैप्चर कर लिया तो नाउ दी रूल, द अपर हैंड वॉज ऑफ तालिबान. ओके, तो द इस्लामिक रिपब्लिक जो कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट थी, इट वॉज रिप्लेस्ड बाय इस्लामिक एमिरेट. ओके, इस्लामिक एमिरेट मतलब तालिबानी गवर्नमेंट. और अशरफ गानी जो उस समय प्रेसिडेंट थे वो भी भाग जाते हैं, है ना. तो यही होता है. और फिर आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज़ डू नॉट रिकॉग्नाइज इट एज लेजिटिमेट गवर्नमेंट बट मेंटेन स्टॉक्स. की बात तो करनी ही होगी बिकॉज एक्सटर्नल रिलेशंस हैं. तो अल्टीमेटली जो लूज़ कौन किया, किसने लूज़ किया था? अफगानिस्तान पीपल ही सबसे ज़्यादा लूज़ किए थे. ना इंडिया ने लूज़ किया, ना USA ने लूज़ किया, ना तालिबान ने यूज़ किया. इट वॉज दी क्रूड जो वहाँ के लोग थे सबसे ज़्यादा, उन्हीं को इफ़ेक्ट किया. और ऐसे देख सकते हैं अभी भी फूड इनसिक्योरिटी है. तो जैसे ही तालिबान ने गवर्नमेंट बनाई, उसका कैबिनेट भी है, मिनिस्टर भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है. इफ़ यू सी इन विकीपीडिया पेज यू विल सी दी हु इज़ करेंट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो जैसे ही ये सब आया था तो इट जो 80% जो इंटरनेशनल फंडिंग थी, इट लॉस्ट इट. ओके, जब और जो इंटरनेशनल फंडिंग जो UN के थ्रू एंड वर्ल्ड बैंक, IMF जो ये देते थे उनको फूड सिक्योरिटी के लिए, डेट स्टार्टेड कल्मिनेटिंग इनटू फूड इनसिक्योरिटी, हंगर एंड malnutrition, or of course ban on the education of girls, deteriorated the girls education, girls conditions. Okay, so significance देख लेते हैं. जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस मतलब जो स्ट्रेटेजी मतलब लॉन्ग टर्म जो प्रिवेंटिंग दी लोकेशन फैक्टर. ओके, सो जियो स्ट्रेटेजी में फर्स्ट वी शेयर द बॉर्डर थ्रू द वखान कॉरिडोर. ओके, एज आई टोल्ड यू दैट नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड which is bordering both China and India. यहाँ से पाकिस्तान शुरू होता है. तो दैट इज दिस पार्ट इज़ वखान कॉरिडोर. तो ऑफ कोर्स ये वखान कॉरिडोर है एंड गेटवे टू सेंट्रल एशिया. अफगानिस्तान है तो इधर से भी रास्ता है और इधर से भी रास्ता है ना, और ऊपर भी रास्ता है. सो इट इज़ द गेटवे टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ एंड द वेस्ट एशियन कंट्रीज़.
So it lies at the crossroad of the these Central Asia and West Asia route. Okay, it is lying in the crossroad, बीच में है अफगानिस्तान. That's why it becomes strategically very important. पाकिस्तान अफगानिस्तान इक्वेशन में क्या है? So location Pakistan location will affect the Pakistan Afghanistan equation, and there is territorial disputes over regions like Khyber Pakhtunkhwa. मैंने बताया था आपको कि पश्तून region पश्तून are in majority here and they want to be aligned with the Afghanistan. And then Pakistan is influencing the politics of Afghanistan. ना Pakistan views Afghan from the prism of strategic depth. ना वो सोचता है कि strategic depth क्या चीज़ है. स्टैटिक डेप्थ का मतलब ये है कि जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल दिस इज़ अफगानिस्तान एंड दिस पाकिस्तान. ओके, सो अगर पाकिस्तान में कुछ हो जाएगा तो दे विल मूव टू अफगानिस्तान एंड दे विल स्टार्ट कंट्रोलिंग. एक टाइप का बैकअप है, तो यहीं से दे विल स्टार्ट रूलिंग और कंट्रोलिंग देयर गवर्नमेंट. ओके, यहीं पर यहाँ से अगर फ्लड हो जाएंगे तो यहाँ पर एक रिफ्यूजी एक बैकअप प्लान था. दैट इज़ द स्ट्रेटेजिक डेप्थ, है ना. तो इट वाज जैसे हमारा फॉर एग्जांपल मैंने इसमें एग्जांपल लिया था डेजर्ट का, तो इट इज़ द नैरोनेस ऑफ टेरिटरी विच बिकम्स इम्पॉर्टेंट. एंड सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे हो गया, थार डेजर्ट हो गया, तो दैट इज़ द स्ट्रेटेजिक डेप्थ. ओके, थार डेजर्ट है हमारे बीच में दी बिटवीन द एरियाज ऑफ द मैरीटाइम बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया. तो थार डेजर्ट प्रोवाइड्स वेरी ब्यूटिफुल स्ट्रेटेजिक डेप्थ. तो वहाँ पर इंडिया फाइट कर सकता है, कोई लॉस ऑफ लाइफ और ज़्यादा लोग रहते भी नहीं है, प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय इतनी नहीं होगी. So example, if India captures Pakistan, Afghanistan would be the place of refuge and regrouping, as I told you. Pakistan's support to Taliban, of course, there was the Pakistan's support to Taliban in Afghanistan because it wants to derail Afghanistan. And security wise, we see the unstable Afghanistan is detrimental to India's interest. कैसे? Possibility of Afghan soil being used by non-state actors, that is non-state actors जो भी terrorist होते हैं, terrorist groups होते हैं, organized criminal organizations होती हैं. So these will be used for terrorism and financing. Recruitment और training जो होती है वो अफगान सॉइल में होगी. And the spillover effects इंडिया में भी आएंगे और जो भी आस पड़ोस के देश हैं वहाँ पर भी, ईरान में भी आएंगे. So it will affect the whole all the neighbors of Afghanistan, and especially we can see the effect on Jammu and Kashmir. ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में इंडिया सपोर्ट्स अफगान पीपल, क्योंकि वी वांट टू सपोर्ट अफगान. ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है हमारा, वासुदेव कुटुंबकम हमारी फिलॉसफी है टू सपोर्ट द पीपल इन नीड, है ना. अफगानिस्तान हमारा बहुत पुराना दोस्त भी है. सो जियो इकोनॉमिकली वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ अफगानिस्तान. जियो इकोनॉमिकली क्या है कि गोल्ड और आयरन एंड द रेयर अर्थ मेटल्स बहुत है वहाँ पर. हाजिकक माइंस ऑफ द आयरन, it's the largest mine of Afghanistan that is also situated there. And it is having, according to some estimate, it is having around $1 trillion untapped wealth. And cultural and civilizational connect में देख लिया. अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि गंधारा है, and the Gandhara which is the Buddhist form, बुद्धिस्ट स्कूल कंधारा हो गया. एंड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड आई टोल्ड यू बिफोर. एंड ऑफ कोर्स मॉडर्न पीरियड में हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक बुक थी काबुली वाला, है ना. उसमें भी ही टॉक्ड अबाउट अ स्ट्रॉन्ग स्टोरी अबाउट द पश्तून इंडिविजुअल. सो हम लोग देख सकते हैं कि कैसे इंडिविजुअल कनेक्शन है, पीपल टू पीपल टाइज हैं इंडिया और अफगानिस्तान के. सो दैट्स वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. और जियो पॉलिटिकली भी सार्क का मेंबर है और हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंसेस जो होता है. एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ वन मोर मॉस्को फॉर्मेट विच इज़ एग्जीक्यूटेड बाय रशिया. सो हार्ट एंड एशिया कॉन्फ्रेंसेस, सार्क, UN एंड दिस मॉस्को फॉर्मेट, वहीं पर हम लोग सब एक साथ बैठते हैं एंड देन वी टॉक रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान. तो हमारे क्या क्या इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में. लेट्स सी स्टेबिलिटी. ऑफ कोर्स वी वांट स्टेबिलिटी. अगर इंस्टेबिलिटी होगी तो वो स्पिल ओवर इफेक्ट इंडिया में भी आएगा. एंड टू बाईपास द पाकिस्तान अलाउ नहीं करता है, और अगर अलाउ भी करता है तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इंडिया के ट्रेड और ट्रांजिट रूट में रख देता है. तो चाबार पोर्ट भी हम लोगों ने देखा था कि चाबार पोर्ट इट इज़ बीइंग डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ चाइना, है ना. एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ CPEC. ओके, तो अफगानिस्तान में हम लोगों ने द चाबार पोर्ट of the Afghanistan
My bad. Afghanistan, Chabahar port of the Afghanistan, which is a counter to Gwadar port of Pakistan, okay, which is being developed with the help of China. एंड रोल ऑफ एक्सटर्नल एक्टर्स देख लेते हैं. चाइना का इसमें इंटरेस्ट है, यूएसए का इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, और अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है. दैट्स वाई दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू दिस थिंग ओनली. तो एक बार देख लेते हैं टाइमलाइन. आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 वी स्टार्टेड विद द ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन. 1979 में वी सपोर्टेड द अफगान गवर्नमेंट एंड द नॉर्दर्न अलायंस आफ्टर द 1990s, which was in opposition to the Taliban. 2001 में फिर वी सपोर्टेड अफगानिस्तान गवर्नमेंट एंड पीपल इन द पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन. अब जो भी डैमेज हो गया था वहाँ पर वी स्टार्टेड असिस्टिंग इट. तो 2005 में इंडिया जैसे सपोर्ट किया था, ये एग्जांपल्स आप मेंस के आंसर में लिखेंगे तो इट विल मेक अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन टू द एग्जामिनर. तो 2005 में हम लोगों ने देखा कि इंडिया सपोर्टेड इंक्लूजन ऑफ इट इन सार्क, सपोर्ट किया था. तो 2005 के बाद से वो सार्क में आ गया था अफगानिस्तान. And state building started after the 2011, and we signed what is called as strategic partnership agreement. Okay, so this was a first thing by any Afghan government which was done with India. This is the first by Afghan government which was done with India. Excuse me. So this was a strategic partnership agreement. And इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं. जैसे हम लोग देखेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द अफगान पीपल एंड अफगान गवर्नमेंट. वी विल इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बोथ सिविलियंस एज वेल एज द आर्म फोर्सेज ऑफ अफगानिस्तान. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लोग देख लेते थे कि नेचुरल रिसोर्सेज एज आई टोल्ड यू, economic development we will try. There's untapped potential around of $1 trillion of untapped wealth is there. Hajikak mines are there. So if we tap those resources तो उसका भी भला होगा, और it will be able to export to other nations like India also. So India का भी भला, everything is linked with comparative advantage in international trade. Okay, so also we provide duty free access to Afghan products in Indian market. हम लोग Indian market provide करते हैं जिसमें कोई भी ड्यूटी, दी एक्सपोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, कोई भी ड्यूटी नहीं लगती है. So it can bring, so that it can export as much as products are possible, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए. Then we see the post 2016 we started the high impact development projects. high impact का मतलब है जिसका social economic इम्पैक्ट ज़्यादा हो, है ना उसका. फॉर एग्जांपल बिल्डिंग दी स्कूल्स, रोड्स एंड हॉस्पिटल्स. ओके, एंड मतलब मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स हैव बीन inaugurated across all the provinces. This is the contribution of India. Okay, and this is the fact I've written here. See, my main purpose of teaching is to share my notes with you. Okay, and please try to give me the feedback कि मुझे ज़्यादा हिंदी में बोलना चाहिए, ज़्यादा कम इंग्लिश में बोलना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए, ज़्यादा बोलना चाहिए. सो प्लीज़, दिस इज़ माई स्टार्टिंग, एंड इफ़ यू कैन गिव मी फीडबैक इट वुड बी ब्यूटिफुल. और अगर आपको कैसा भी अच्छा लग रहा है, प्लीज़ ट्राई टू टेल मी कमेंट बाय कमेंटिंग और बाय मेलिंग मी और बाय ज्वाइनिंग माई टेलीग्राम चैनल. ओके, सो वी सी जो भी फैक्ट्स रिलेटेड होंगे मेंस से एज वेल एज प्रीलिम्स से, आई विल बी टेलिंग यू हेयर. So Hajikak mines, we have seen that this is the biggest mine of the iron ore, and we participated in its development. Scholarships India देता है, and training to Afghan civilian as well as forces, as I told you, as a part of capacity building. Okay, तो हम लोग ने एक चीज़ देखी थी कि $3 billion assistance. No need to remember the data, the number, but just have the idea कि हाँ $3 billion assistance दी थी to build the सलमा डैम. इसको इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है, सलमा डैम. एंड ऑफ कोर्स पार्लियामेंट्री बिल्डिंग, उनकी जो पार्लियामेंट था इज वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी टू द वर्ल्ड्स यंगेस्ट. तो ये कोट कर सकते हैं मेंस में, बीट UPPCS, MPPCS और UPSC. कुछ चीज़ें तो सेम ही रहती हैं. एंड ऑफ कोर्स वी सपोर्टेड द डेवलपमेंट ऑफ, सपोर्टेड क्या, पूरा इसी को हम लोगों ने फंड किया था, दिलाराम जरांज हाईवे. एंड देर इज़ वन ऑल्सो ट्रांसमिशन लाइन जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी के लिए पुल ए खुमरी. ओके, पुल ए खुमरी, ट्रांसमिशन लाइन, दिलाराम जरांज हाईवे, पार्लियामेंट्री बिल्डिंग, सलमा डैम. सो दीज वर ऑल दी
contribution of India. Okay, sorry. Alternative routes देख लेते हैं कि we want to build the alternative routes to bypass Pakistan, क्योंकि पाकिस्तान अलाउ नहीं करता है इतना. So what we did was we have a tripartite agreement. 3 लोगों के बीच में, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, एक agreement है to find the route. अभी भी वो प्रोग्रेस कर रहा है. एंड डेवलपमेंट ऑफ चाबार पोर्ट, एज आई टोल्ड यू, तो जाहिदान एक एरिया है टू लिंक दी दिलाराम एंड जरांज हाईवे. ओके, सो दिस इज़ एन ऑल्टरनेटिव रूट. दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अफगानिस्तान कि हाँ एक ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करें हमें. और हमने एक चीज़ देखी हुई है कि एयर कॉरिडोर्स भी इंडिया ने बहुत हेल्प करी हुई है. एयर कॉरिडोर्स जहाँ से, मतलब एयर कॉरिडोर्स वी यूज़ इट फॉर फ्रेट, नॉट एक्चुअली पैसेंजर्स, बट मोस्टली फॉर फ्रेट, लाइक ड्राई फ्रूट्स एंड सीजनल प्रोडक्ट्स जिसमें डिले नहीं हो सकता. एंड दिस इज़ यूज्ड फॉर एक्सपोर्ट्स. ओके, एक्सपोर्ट्स ऑफ द अफगानिस्तान प्रोडक्ट्स टू इंडिया. तो एग्जांपल्स लिख सकते हैं, दिल्ली काबुल एंड दिल्ली कांधार एयर कॉरिडोर्स. ओके, सो वी स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस इंटरनेशनल प्रोसेसेस. जैसे कि मैंने बताया था आपको, हार्ट एंड एशिया कॉन्फ्रेंस, जिसको इस्तांबुल प्रोसेस भी कहा जाता है, एंड इट स्टार्टेड इन 2011. ओके, इस्तांबुल प्रोसेस बिकॉज द फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन इस्तांबुल. And it is the one platform for international organizations and neighbors for CBMs, confidence building measures. Confidence building measures, that is to increase the trust and bonhomie between the two nations or multiple nations. तो वही चीज़ें इसमें भी, कनेक्टिविटी, एजुकेशन, स्कॉलरशिप्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. सो और इंडिया hosted the 6th ministerial conference in 2016, which was held in Amritsar. Okay, so we can see how India is mobilizing international support to help Afghanistan. Okay, and the second one is RECA, Regional Economic Cooperation Council of Afghanistan. So it was also announced in 2005. It was established in 2005, and in 2006 hosted by India in Delhi. So these two organizations are the part of international process of mobilizing the help for Afghanistan. तापी पाइपलाइन भी हम लोग के एक प्रोजेक्ट है, दैट इज़ दी तुर्कमेनिस्तान एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया पाइपलाइन, विच इज़ द गैस पाइपलाइन. ओके, एंड देन पीस एंड रिकन्सिलिएशन भी एक पार्ट है, जिसमें मॉस्को फॉर्मेट जो रशिया ने स्टार्ट किया था. मॉस्को फॉर्मेट 2000, इसका मॉस्को फॉर्मेट होता है, ये सारी मीटिंग्स रशिया में ही होती हैं. सो इंडिया कहता है कि एनी एफर्ट मस्ट रिफ्लेक्ट, कोई भी एफर्ट हो, इट मस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस, माइनॉरिटी एंड वुमेन राइट्स, एंड मस्ट नॉट लीव एनी वेकेंट टेरिटरीज. जो भी वेकेंट टेरिटरीज होंगे, इट विल बी यूज्ड, दिस सॉइल विल बी यूज्ड फॉर फर्दर टेररिस्ट एक्टिविटीज़. ओके, एंड ड्रग फाइनेंसिंग, ट्रैफिकिंग एट्सेट्रा. तो कुछ भी वहाँ पर वेकेंट नहीं छोड़ना है, या तो फोर्सेज रहनी चाहिए या गवर्नमेंट रहनी चाहिए. ओके, 2020 फरवरी में इंडिया अनऑफिशियली विटनेस द साइनिंग ऑफ द पीस डील. जो इंडिया US एंड तालिबान की जो डील थी. सो वी सेंट आर फॉरेन ऑफिशियल्स, बट दे वर सेंट इन अनऑफिशियल कैपेसिटी जस्ट टू विटनेस द साइनिंग ऑफ द डील. 2020 सितंबर, फरवरी के बाद जो सितंबर आया, उसी साल में वी पहली बार हमने ऑफिशियली और डायरेक्टली वी सेंट आर फॉरेन मिनिस्टर श्री S जयशंकर, which meets with Taliban. Okay, 2021 आ जाता है, जिसमें इंडिया वॉज चेयरिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. और जो चेयर करता है, तो ये रोटेटिंग वाइज होता है, और हर कंट्री, दैट इज़ दी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, दी चेयर दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एवरी मंथ. ओके, सो इंडिया जब ये चेयर करा था, इट प्रपोज द UN रेजोल्यूशन, उसका नंबर है 1593. नो नीड टू रिमेंबर, जस्ट हैव एन आइडिया. UN रेजोल्यूशन फॉर द सेम थिंग, दैट इज़ द रिड्यूस वायलेंस, इंक्रीज द पीस एंड रिकन्सिलिएशन, इवैक्यूएशन ऑफ द स्ट्रैंडेड वंस इन अफगानिस्तान. तो एक कोट हमने देखा कि PV नरसिम्हा राव, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, so he said that sometimes the best course of action is taking no action. Okay, the wait and watch policy, that's why we sent our ambassador, our foreign official unofficially. Okay, कि बस देखने के लिए गए कि ठीक है क्या हो रहा है, observing the process. तो जो हमने यहाँ पर कहा इवैक्यूएशन ऑफ स्ट्रैंडेड वन, सो वी डिड व्हाट, ऑपरेशन देवी शक्ति.
to rescue the stranded Indian citizens that were being harassed by the Taliban. 2022 आ जाता है तो इंडिया रीओपनड इट्स एम्बेसी इन अफगानिस्तान अगेन फॉर ऑब्जर्विंग द एक्टिविटीज़ ऑफ तालिबान. सो इट वॉज डन. अब कुछ ना कुछ तो रिलेशंस रखने ही होंगे. चैलेंजेस देख लेते हैं इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में. सो लैक ऑफ डायरेक्ट एक्सेस. As you know that there is lack of direct access, that it is a landlocked country, and Pakistan is also obstacle in the Afghanistan and India trade. Okay, बस जो बचता है वो वखान कॉरिडोर बचता है, and it is a very narrow, and also China is bordering with it. So there are obstacles. तो हम लोग तभी देखा कि alternative routes like air corridor और चाबार पोर्ट हम लोग ने डेवलप किए. Domestic instability challenges है, of course corruption, infighting. ISIS also announced that it will build Islamic State of Khorasan. So वो domestic instability also because of political transitions. कभी गवर्नमेंट आ जाती है तो कभी मिलिट्री रूल होता है तो कभी तालिबान होता है. सो इट इज़ जहाँ भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो इट विल बी इन क्राइसिस. कुछ भी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी नहीं होगी, एंड इट्स सिक्योरिटी विल ऑलवेज बी इन डेंजर. एंड सिक्योरिटी, as we talked about, Afghan's own defense forces are weak, so dependent on external forces, that is ISAF, that is International Security Assistance Force, which was UN mandated task force, and it had the forces of NATO members only. तो USA का ही था, and it is witnessing the rise in insurgency. The significance of security implication in Afghanistan is that it is also witnessing the insurgency, और जो insurgency होगी वो of course पाकिस्तान में आएगी और पाकिस्तान से इंडिया में आएगी. So it is the direct linkage. No need to go through the Pakistan also. वकान कॉरिडोर से भी आ सकती है. तो इम्पैक्ट क्या था इसका सिक्योरिटी में देख लेते हैं. इम्पैक्ट 2008 में अटैक हुआ था इंडियन एम्बेसी में. सो इट वाज डन बाय हकानी नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान. एंड जो और ये जो शरण लेते थे, अपनी शरण जो लेते थे, दैट वाज दे वर टेकिंग रिफ्यूजी इन अफगानिस्तान. तो इट इज़ सपोर्टेड बाय तालिबान एंड अलकायदा. तो ये सब एक पूरा गठबंधन है इन लोग का. सो वे फॉरवर्ड क्या होगा हम लोग के कनेक्टिविटी के संदर्भ में, दैट वी फर्स्ट असेस दी अनफोल्डिंग सिचुएशन. पहले वेट एंड वॉच देखते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है. सो दिस इज़ दी लॉन्ग टर्म सिचुएशन ऑफ लॉन्ग टर्म स्टेप विच कैन बी डन विद एनी कंट्री. सेकेंडली, वॉचफुल एंगेजमेंट ऑफ विद तालिबान, है ना. एंगेज करना ही होगा, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एंगेज विद तालिबान और एनी गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, बिकॉज अफगानिस्तान हैज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, है ना. तो तालिबान हो या अफगान गवर्नमेंट हो, वी हैव टू एंगेज विद इट. इंटरनेशनल कम्युनिटी से एंगेज करना पड़ेगा. एज आई टोल्ड यू, मॉस्को फॉर्मेट, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, UN रेजोल्यूशन 1593. ओके, दीज वर डन. दिस इज़ दी स्टेप टेकन बाय इंडिया, and these are the steps taken by other countries including India. एंड ईरान एंड सेंट्रल एशियन इंटरनेशनल कम्युनिटी में ईरान जो उसको लेफ्ट एंड जो उसके वेस्ट एंड साइड का बॉर्डर है, ईरान को भी और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को भी कोऑपरेट करना चाहिए. बस इंडिया ये नहीं कि बस सारा चीज़ इंडिया करें, दे शुड ऑल्सो कोऑपरेट. एंड बिकॉज Iran and Central Asian countries have a significant Muslim population, so they can contribute to the development of Afghanistan. Okay, and US, Russia, the great powers, they should also, they have actually opened the channels of negotiations. As I told you, US ने peace deal की और रशिया ने मॉस्को फॉर्मेट किया. फोर्थली, पीपल टू पीपल टाइज लाइक सिनेमा एंड क्रिकेट. ये हमारा सिनेमा इज़ वेरी पॉपुलर इन नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. नॉट पाकिस्तान एक्चुअली, बट अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, एट्सेट्रा. एंड these two things are called the two heroes, the two heroes of the Afghanistan and Indian relation. ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए अफगानिस्तान का रिफ्यूजी मेडिसिन एंड फूड सप्लाई टू कंटिन्यू. सो टू कंक्लूड, वी कैन से दैट इंडिया सपोर्ट्स अफगान लेड, अफगान ओन्ड एंड अफगान कंट्रोल्ड inclusive and transparent process of peace and reconciliation. Okay, so it should be Afghan led, Afghan government led, not Taliban, not the external government, not the civil, not the military rule, but Afghan government led democratically, and Afghan owned and Afghan controlled. It should be Afghan controlled also, inclusive and transparent process of peace and reconciliation. So India supports that thing.
and it should acknowledge that Afghanistan needs international support also, and India is mobilizing everything which it can do in its capacity to help Afghanistan. So that's all for today. Tomorrow I will be tomorrow or the next time I will be beginning with India and Bangladesh relations. So have a nice time. Thank you.